morning, students. Today we are going to study the poem named The Lake Isle of Innisfree. The Lake Isle of Innisfree is composed by William Butler Yeats. In this poem, the poet wants to go on the lake because he wants some peace in his life. The William Butler Yeats thoughts that on the lake he can find peace in his life because William Butler Yeats in his childhood passed their time, so he want to go again on the lake. Let's start now. I am going to model reading of this poem. Please listen it carefully. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there, of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for honeybee, and live alone in the bee-loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of morning to where the cricket sings. There midnights all a glimmer, and in noon a purple glow, and evenings full of the linnet wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear the lake water lapping with low sounds by the shores. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heard score. Now, students, I am going to explanation of the stanzas. Listen it carefully and write the new words in your notebook. Let's start. The first stanza is, the poet says, I will arise and go now, and go to Innisfree. In the beginning lines, the poet want to go on the lake, and he says that I will arise. I here refer to William Butler Yeats. I will arise. Arise means stand up, and go now, and go to Innisfree. इस पंक्ति में जो पोइट अपना ईट्स वो कहना चाहता है कि वह वहाँ से खड़ा होगा और अब वह उस इनिसफ्री, उस लेक जिसका कि नाम इनिसफ्री है, वहाँ पर जाएगा. एंड स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वेटल्स. In the second lines, the poet want to say that he will build a room there. That room will be made of clay and wattles. दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि मैं वहाँ पर इनिसफ्री नामक जो स्थान है, लेक के पास जो स्थान है, वहाँ पर जाऊँगा और एक वहाँ पर एक रूम, एक कैबिन, एक कमरा बनाऊँगा जो कि क्ले यानी मिट्टी एंड वेटल्स ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फैंसी वॉल्स. जिस प्रकार से अपन ने विभिन्न खेतों में जो झोंपड़ियाँ बनी हुई देखी हैं, जो विभिन्न प्रकार की मुड़ी हुई लकड़ियों से बनी हुई होती है, उन्हीं से कवि वहाँ पर उस इनिसफ्री नामक स्थान पर जो कि आइल लेक के पास है, उस पर वह एक छोटा सा कैबिन बनाएगा. 9 bean rows will I have there, a hive for the honeybee. In the third lines, the poet says that he will arrange some food there, and food will be get from the beans. Beans means सेम की फलियाँ.
तो कवि यहाँ पर कहता है कि वह वहाँ पर 9 पंक्तियाँ बीन की बनाएगा और शहद के लिए उसके पास वहाँ पर एक मधुमक्खियों का छत्ता होगा जिससे वह शहद प्राप्त करेगा। और इस स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है इसमें कवि कहता है, एंड आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। आई लिव अलोन इन द बी लाउड। बी लाउड मीन्स साउंड, बीज के द्वारा क्रिएट किया हुआ साउंड। और ग्लेड, ग्लेड मीन्स ओपन स्काई, ओपन स्पेस, जहाँ पर खुली जगह हो। तो कवि कहता है कि मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। आई लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। और उस खुले हुए पूरे स्थान पर उसे वहाँ पर उन बीज की, मधुमक्खियों की जो गुंजन है वह वहाँ पर उसे सुनाई देगी। तो अपन ने अभी इस एक स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन किया। इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो ब्रैकेट में भी लिखे हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब इसका सेकंड स्टेंजा लेते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। In the beginning lines we have read that our poet William Yeats will go on isle Innisfree and he will get some peace there. वह ऐसा सोचता है कि मैं इस स्थान पर जाकर के कुछ शांति प्राप्त करूंगा। और शांति किस किस प्रकार से उसे मिलती है आगे की पंक्तियों में बताया गया है। For peace comes dropping slow। और वह कहता है वहाँ पर जो शांति है वह धीरे धीरे उसे प्राप्त होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स, व्हील्स मीन्स ए पीस ऑफ फाइन मटेरियल worn by women to protect to conceal the face। व्हील्स का मतलब होता है कि एक ऐसा कपड़ा जो कि महिलाएं अपने चेहरे को ढकने के लिए काम में लेती हैं, यानी अपन उसे आम भाषा में, लोकल लैंग्वेज में अपन घूंघट कहते हैं। ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट। क्रिकेट एन इंसेक्ट रिलेटेड टू द ग्रास हॉपर बट विद शॉर्टर लेग्स। द मेल प्रोड्यूसेस ए कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूजिकल चीपिंग साउंड। जो यहाँ कोने में बना हुआ है ग्रास हॉपर, एक फुदकने वाला छोटा सा कीट। सिंग्स यानी वह गाता है। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर। ग्लिमर मीन्स शाइनिंग, चमक। मिडनाइट का जो यहाँ पे नाम लिया गया है, द स्टार साइन, तारों की जो चमक है वह यहाँ पर इस ग्लिमर शब्द से संबंधित है। एंड नून ए पर्पल ग्लो। एंड इवनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। लिनेट्स ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद ए शॉर्ट बीक। तो यहाँ पर कवि इस स्थान पर जाकर के शांति प्राप्त करेगा जो कि धीरे धीरे उसे प्राप्त होगी। और वह वहाँ पर इस प्रकार की कल्पना भी करता है कि वह शांति उसे कैसे कैसे प्राप्त होगी। इन विच वेज ही गेट द पीस। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर क्रिकेट सिंग्स। कि जब वह उस स्थान पर रहेगा, जब सुबह होगी, तो सुबह जिस प्रकार से महिलाओं का मुंह पर घूंघट रहता है, इसी प्रकार से एक कल्पना करते हुए वह कहता है कि सुबह सूर्य की रोशनी से जिस प्रकार से अंधेरा हटता जाता है, घूंघट ऊपर उठता जाता है, उस प्रकार से उसे वहाँ पर शांति मिलेगी। जहाँ पर क्रिकेट, एक ऐसा कीट जो कि आवाज़ करता है, उसके गीतों से उसे वहाँ पर शांति प्राप्त होगी। देयर मिडनाइट्स ऑल ए ग्लिमर एंड नून ए पर्पल ग्लो। और तीसरे नंबर पे ये बताना चाहता है कि उसे रात्रि में भी किस प्रकार से शांति प्राप्त होगी कि जब वह खुले आसमान में तारों की चमक को देखेगा तो उसके मन को, उसके हृदय को शांति प्राप्त होगी। और दोपहर के समय जब सूर्य पर्पल कलर देने लग जाता है, हल्का बैंगनी कलर का हो जाता है, उसकी चमक इस प्रकार की हो जाती है, वो भी इस कवि को शांति प्रदान करेगी। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स। और शाम के समय जब आसमान इस छोटी सी चिड़िया के
पंखों से भरा हुआ होगा। यानी ये चिड़िया जो अपने पंखों की सहायता से उड़ती हुई आसमान में दिखाई देगी, तब भी उस कवि को यहाँ पर शांति प्राप्त होगी। और इस तीसरे स्टेंजा में जो कवि है वह फिर से उस बात को दोहराता है, रिपीटेशन करता है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। नाइट एंड डे का मीन्स यहाँ पर है ऑल द टाइम। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विच लो साउंड्स बाय शोर। द पोएट सेज कि मैं यहाँ से खड़ा होऊंगा और वहाँ पर जाऊंगा और हमेशा पूरे समय रात और दिन वहाँ पर रहूंगा। यानी वहाँ पर रह करके ये शांति प्राप्त करेगा, ऐसा अपना कवि बताता है। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग, लैपिंग मीन्स स्ट्राइकिंग, टकराना, विद लो साउंड्स बाय द शोर। और कवि जब वहाँ पर रहेगा तो जब झील का पानी उस किनारे से टकराएगा, जब झील का पानी किनारे से स्ट्राइकिंग करता है, लैपिंग करता है, तो हल्का साउंड क्रिएट होता है। वह साउंड उस कवि को बहुत ही शांति प्रदान करता है। जब वह इस साउंड को अपने कानों से हियर करता है, सुनता है, तो उसके दिल में एक सुकून मिलता है, उसे शांति मिलती है। While I stand on the roadway और on the pavement grey, कवि कहता है कि जब कभी भी वह उस लेक के किनारे सड़क पर कभी खड़ा होगा या उस सलेटी कलर के पेमेंट्स पर, पगडंडी पर जब वह खड़ा होगा, तो आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर। हार्ट स्कोर मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी दिल की गहराइयों वाला हिस्सा। तो कवि अपना विलियम बटलर येट्स कहता है कि जब वह उस झील के किनारे कहीं सड़क पर खड़ा होगा या कहीं पेवमेंट पर खड़ा होगा, तो वह अपनी दिल की गहराइयों में उस झील के पानी का जो टकराव उसके किनारे पर होता है, उसके शोर पर होता है, उस शोर को वह सुनेगा और उसके मन को वहाँ पर शांति मिलेगी। तो विलियम बटलर येट्स ने शांति प्राप्त करने के लिए जो जगह चुनी है वह एक झील के किनारे है। और इन सारी कविता में अपन ने देखा कि जो कवि है वहाँ जाएगा, वहाँ पर एक छोटा सा केबिन बनाएगा, अपने खाने की व्यवस्था करने के लिए 9 रोज ऑफ बीन्स लगाएगा, अपने भोजन के साथ साथ वह हनी प्राप्त करने के लिए वहाँ पर वो एक हनी कॉम जो हाइव लगा हुआ है वह वहाँ पर उससे हनी प्राप्त करेगा। वह विभिन्न प्रकार के पक्षियों की, कीट पतंगों की आवाज़ सुनकर के भी शांति प्राप्त करेगा। रात को आसमान जब तारों से टिमटिमाता रहेगा, चमकता रहेगा, तब वह भी शांति प्राप्त करेगा। और दोपहर के समय जब सूर्य पर्पल ग्लो प्रदान करता है, वह भी उसे वहाँ पर शांति देगा। साथ में अपन ने देखा कि वह फिर से वहाँ खड़ा होगा, रात और दिन हमेशा वह वहाँ पर अपना समय व्यतीत करना चाहता है। वह उस झील के पानी का जो टकराव उसके शोर से है, किनारों से है, उसमें भी शांति प्राप्त करता है। और वह अपने दिल की गहराइयों में बार बार में जब वह झील के किनारे कभी खड़ा होगा, पेवमेंट पर कभी खड़ा होगा, तो उस झील के पानी के टकराने की जो आवाज़ है वह उसके हृदय में कहीं न कहीं हृदय की गहराइयों में उसे शांति प्रदान करेगी। तो अपन ने इस कविता की एक्सप्लेनेशन कर ली, मॉडल रीडिंग लगाई, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड साथ में लिखे हुए हैं, तो आप इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।